آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے محمد احسن ملک صاحب، جو کہ انالسٹ ہیں، پراپرٹی کے کام کو بہت زیادہ سمجھتے بھی ہیں، اس کے بارے میں ان کا ایکسپیرینس بھی ہے، اور اس لیے ان سے آج ریکویسٹ کی ہے کہ آئیں، یہ بتائیں کہ یہ جو پروپوزڈ ریلیف پیکج ہے اس کے بارے میں حکومت کیا سوچ رہی ہے، اور اس کے اثرات جو ہے وہ پراپرٹی کے سیکٹر کے بارے میں کیا ہوں گے۔ گنائی صاحب، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نیچے آ رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس پہلے تھا کہ انہوں نے بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے تھے، اب انہوں نے اپنے پیسے وہاں سے نکلوانے ہیں تو انہوں نے کسی نہ کسی ایونیو کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو ان کے لیے یہ انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ کے اندر کتنی فیزیبل ہے، اس ٹائم کیا مسائل ہیں، اور آگے وے فارورڈ کیا ہے۔ احسن ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ پرائم منسٹر کی جو ٹاسک فورس ہے، لاسٹ 2 ٹائمز ایسے ہوا کہ اس کی میٹنگ رکھی جاتی ہے، پرائم منسٹر صاحب وہ میٹنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا تجاویز فائنل کی ہیں اور ان پہ کب سے عمل درآمد ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مہتاب صاحب کہ آپ نے اس اینڈ کا بھی پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بات یہ، پرائم منسٹر نے ٹاسک فورس بنائی اور تھیم یہ ہے کہ کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ کو پروموٹ کیا جائے، جو ملک میں انڈسٹریز ہیں ان کی طرف سے ڈیمانڈ کریٹ کروائی جائے گورنمنٹ سے، کیونکہ انڈسٹری بھی چوک ہوئی ہوئی ہے۔ تو اس پہ پھر یہ ٹاسک فورس بنی اور اس پہ ڈفرنٹ لوگوں نے کام کیا۔ ہم نے بھی کافی ٹیکسیشن پہ کام کیا، باقی ایکسیس ٹو فائنانس پہ کام ہوا، مارٹگیج پہ کام ہوا، اور ایک ہم نے آپ کہہ لیں سفارشات بنا کے ود دی کانسینٹ آف فائنانس منسٹر علی پرویز ملک صاحب، محمد اورنگزیب صاحب اینڈ ریاض حسین پیرزادہ صاحب جو ہاؤسنگ منسٹر ہیں، 3 منسٹر اس کے اندر انوالو تھے جنہوں نے ان چیزوں کو ویٹ کیا اور ایکسیپٹ کیا۔ اور وہ چیمہ صاحب بھی تھے؟ نہیں، آج چیمہ صاحب نہیں تھے۔ پرائم منسٹر نے جو کنوینئر کہہ لیں، چیئرمین ہیں، وہ ہاؤسنگ منسٹر ریاض حسین پیرزادہ صاحب ہیں۔ اچھا، ویسے ایک وہ چیز میں آپ کے نالج میں شاید پہلے بھی تھی کہ پہلے آج چیمہ صاحب اس کو لے کر چل رہے تھے، پھر اس کے بعد ٹاسک فورس بن گئی۔ اب لیٹسٹ آپ نے کہا 2 دفعہ، میں آپ کے لیے علم میں اضافہ کر دوں، 4 دفعہ، ایون کل رات، آج ہے میرا خیال ہے 12 تاریخ ہے، اور کل رات جو گزری رات ہے اس کو میسج آیا کہ صبح آج کے دن میں 12 تاریخ کو 4 بجے میٹنگ ہے، اور صبح 10 بجے میسج آ گیا ڈیو ٹو ٹرکش پرائم منسٹر کہ میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے مہتاب صاحب، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ المیہ نہیں ہے، یہ پورا پلانڈ ہے۔ اب آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، آپ نے مجھے میری تصحیح کی کہ 2 نہیں 4 دفعہ ہوئی ہے، تو میں بھی آپ کی تصحیح کر دوں کہ یہ بالکل المیہ نہیں ہے، یہ بالکل پلانڈ ہے، اور اس پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیں۔ اچھا نہیں، المیہ میں کس کنٹیکسٹ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا سیکٹر ہے نا ریئل اسٹیٹ، یہ لیسٹ پرائرٹی پہ ہے، یہ کبھی بھی پرائرٹی پہ نہیں رہا۔ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ اس ملک میں سب سے بڑی پرائرٹی ریئل اسٹیٹ ہے۔ ڈی ایچ اے والوں سے جا کے پوچھے نا۔ سر 2 سال سے تو ماں مری ہوئی ہے پورے پاکستان کی پراپرٹی کی، ڈی ایچ اے والوں سے کیا پوچھوں؟ مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ گورنمنٹ ہماری محبت میں کر رہی ہے، پریشر آیا ہے، ریونیو کلیکٹ نہیں ہوئے، ایسی گندی ٹیکسیشن اناؤنس کر دی ایف بی آر نے جس کی وجہ سے وہ بیٹھنے پہ مجبور ہو گئے۔ اگر آپ ریالٹی دیکھیں نا تو آپ نے بھی ایک پنجابی کی مثال سنی ہوگی، ایک ریئل اسٹیٹ کا حال وہ ہے جو ایک گھر میں بڑا بچہ ہوتا ہے نا، جو پورے خاندان کو پالتا ہے، ہر کو لک آفٹر کرتا ہے، پر سارے لوگ اسی پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اسی کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور آخر میں وہ بچہ پہلے گھر چھوڑتا ہے اور اس کے بعد ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ پھر 1.5-2 سال بعد جب راشن پانی بند ہوتا ہے، پیچھے خاندان کا پھر اس کی منت اللہ کر کے اس کو واپس لایا جاتا ہے۔ بیسیکلی نا اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا آپ کو بجٹ پہ۔ بجٹ میں آپ نے جو ٹیکسیشن اناؤنس کی آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے لیے، وہ نہ تو وائبل تھی نہ ڈویبل تھی۔ تبھی مہتاب صاحب بھی لکھتے ہیں کہ آج 460 ارب کا شارٹ فال ہے یا 470 ارب کا ہے۔ بیسیکلی آپ نے جو ٹیکسز اناؤنس کیے وہ ارریشنل تھے۔ تھوڑی سی تفصیل بتائیں سر۔ لائک ابھی جیسے آپ نے ایف ای ڈی اناؤنس کی، جیسے ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے، اب ایف ای ڈی 3% فار فائلر، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 5% فار لیٹ فائلر، اور 7%
फॉर नॉन फाइलर. इसके बाद जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है फॉर विद होल्डिंग का 236K का, अभी हम सिर्फ फाइलर की बात कर रहे हैं, 3%, 3.5% और 4%. इसी तरह जो सेलर का है 236C, वो भी अगेन 3%, 3.5%, 4%. इसके साथ FAD, इसके साथ 7E डीम इनकम टैक्स, और ये सिर्फ कैपिटल टेरिटरी के अंदर है. 5% स्टैम्प ड्यूटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में. पंजाब में चले जाएं तो इसको, और आप वहां पे भी स्टैम्प ड्यूटी ऐड ऑन कर लें, आप TMA टैक्स ऑन ऐड ऑन कर लें, तो आपने CVT भी होगा. CVT सिर्फ इस्लामाबाद में. ठीक है. तो ये अगर 1 करोड़ रुपए की फर्ज करें प्रॉपर्टी है तो कितना टैक्स बन जाता है? प्रेजेंटली तो जो बन रहा है वो तो 11-12% बन रहा था. फाइलर की बात हो रही है. जो भी गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले रियल एस्टेट को टारगेट करती है. एक पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं आती कि आप इसको लेके चलें. मैं डिफरेंट फोरम पे भी कहता हूं, मतलब जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं वो पागल हैं जो लोगों को अट्रैक्शन देते हैं रियल एस्टेट में. आप अपनी गलतियों को ठीक करने पे तैयार नहीं है. आप कहते हैं सेक्टर ही तबाह कर दो. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप जो रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप कितनी कमी की तजवीज़ कर रहे हैं और क्या क्या तजावीज़ हैं, सिफारिशात क्या हैं आपकी? मेहताब भाई, 236K जिस पे वो एग्री हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी और हाउसिंग मिनिस्टर भी और अली परवेज मलिक साहब भी, वो है 0.50%. 3% से 0.5. 0.50, आधा परसेंट. ठीक है. और जो सेलर है 236C, उसने, हमने कहा है 1.5%, बट फाइनेंस मिनिस्टर ने 2% का है. वो एज इट इज वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे. 7E हमने कहा है. और नॉन फाइलर के लिए क्या है? क्या नॉन फाइलर का तो कहते हैं हम इसको खत्म कर रहे हैं कैटेगरी को. नॉन फाइलर के लिए तो हम एलिजिबल, नॉन एलिजिबल लेकर, लेकिन वो तो कानून साजी आपको बताए वो ऑन हाल्ट चली गई है. आप लेकिन नॉन फाइलर के लिए आप भी हुकूमत को कुछ नहीं कर रहे, वो जो करना चाहती है करे. नहीं, मैं समझता हूँ हुकूमत, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को ये बात बोली कि सर बात ये है, नॉन फाइलर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता. नॉन फाइलर दुबई में भी खरीदे, लंदन में खरीदे, अमेरिका में खरीदे, टर्की में खरीदे, मलेशिया में खरीदे. आप ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते? आप कहते हैं पहले फाइलर बनो फिर प्रॉपर्टी खरीदो. तो मैंने कहा पहले इसको खरीदने देना. वो CDA में प्लॉट खरीद लिया उसने, उसके आपको अलॉटमेंट लेटर उस दिन मिलेगा जिस दिन आप फाइलर बन जाएंगे. आप चीजों को ब्लॉक क्यों करना चाहते हैं? और आप खुद मेहनत करने को तैयार नहीं है. हमारा अदारा FBR, मतलब नॉन फाइलर प्रॉपर्टी खरीदता रहा है ना, आपको 10% पे करता रहा है. तो भाई आपने उस नॉन फाइलर को जाके क्यों नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे पास ये पैसे कहां से आए? क्योंकि आपने उससे 3% की जगह 10% चार्ज किया और उसके बाद आप खामोश होकर बैठ गए. उस पर मेहनत करनी पड़ती है. अच्छा, मैं आपको एक पोस्टपोन होने की बार बार वजह बताऊं. IMF से जब तक अप्रूवल नहीं होगी, ठीक है, ये पैकेज अनाउंस नहीं होगा. ये बताएं कि IMF को कैसे राजी करें? मेहताब भाई, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने इन द प्रेजेंस ऑफ होल टास्क फोर्स कहा कि सबसे पहला स्टेप है यहां पे ये अप्रूव हो इस मीटिंग में. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर इसको ओके करेगा, तो फिर इसी कमेटी में से 5 या 6 लोग IMF के पास जाएंगे और उसको जाके अपने इश्यूज और साथ कन्विंस करेंगे. जिसपे हमारे जो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, DHAs को रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर जनरल दिलावर साहब, उनका नाम टिक हुआ. एक अली परवेज मलिक साहब थे और को 2-4 लोग उन्होंने ऐड ऑन करने हैं साथ, कि ये लोग IMF के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि जी इन टैक्सेशन की वजह से रेवेन्यू में भी कमी आई है और इकोनॉमी भी चोक होकर रह गई है. तो हाँ, आपका वैसे भी इस पे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि आप लोगों से एडवांस टैक्स ले लेते हैं और लोगों को रिफंड नहीं करते हैं. तो इस वजह से हम कर रहे हैं. तो मैं जो पॉजिटिव हूं इसकी कमी का, बिफोर बजट जो आपसे पहले बात हो रही थी कि ये एडवांस टैक्स है, ये कोई ऐसा टैक्स नहीं है कि जिसके ऊपर को शोर मचाएगा IMF. क्योंकि IMF को भी पता है आप एडवांस टैक्स लेके अपनी बुक्स आप अच्छा बच्चा साबित कर देते हैं FBR को कि हमने इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया. ये आपके ख्याल में फिर प्राइम मिनिस्टर बार बार इस मीटिंग को पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं? सर मैंने पहले बोला आपको प्रायोरिटी नहीं है. इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं, टर्किश प्राइम मिनिस्टर आ गया, उसके बाद आप दुबई चले गए, उसके बाद कोयटा वाला इंसिडेंट हो गया, कजाफी स्टेडियम की ओपनिंग हो गई. 236 के
0.5%, जो Okay. पहले 3% है एग्जिस्टिंग। है। आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स के तौर पे आप पे करते हैं, और जब आप वही प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके ऊपर भी 3% था, जो हमने रिकमेंड किया 1.5%, बट गवर्नमेंट की साइड ने उसको 2% रिकमेंड किया है। और एफईडी को तो गवर्नमेंट भी आउटराइटली सपोर्ट कर रही है कि ठीक है एफईडी एबॉलिश होनी चाहिए। ऑब्वियसली हर चीज की कॉस्ट पड़ती है, और आपने अभी रिसेंटली नवंबर में वैल्यूएशंस बढ़ाई हैं। ये दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक ये कह रही हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स जो है 236C और K, उसके अंदर रिडक्शन की बात कर रहे हैं फॉर फाइलर्स। दूसरी बात ये कर रहे हैं एफईडी की। ठीक है, ठीक है, एफईडी के रेट्स मुख्तलिफ हैं, 3% है, ठीक है, 5% है और 7% है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एफईडी को तो अबॉलिश कर दिया जाए। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ सर? अब और नहीं, साथ इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर इस पे एग्री है, Agree किया। अली परवेज मलिक साहब एग्रीड है, आपके फोरम पे बात कर रहा रियाज हूं, पीरज़ादा और रियाज पीरज़ादा साहब और चेयरमैन एफबीआर, ये चारों बड़े लोग इस पे कन्विंस है कि ये खत्म होना चाहिए। वाइसराय अभी नहीं है ना? वायसराय कौन है IMF। सर? आईएमएफ, देखिए आईएमएफ कौन है? आप हैं। एक मिनट के लिए अगर आपको फिगर्स प्रेजेंट किए जाएं कि ये हमसे गलती हो गई है और ये हमने गलत टैक्स लगा दिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब आईएमएफ पागल है। एक बात मैं आपको बताऊं सर, मसला ये है कि ट्रांजैक्शंस कम हुई हैं, ये बात ठीक है। ये ट्रांजैक्शंस देखिए इसके इस वजह से कम हो रही हैं सर कि बुनियादी तौर पे रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान में लोगों ने स्टाम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट्स करने शुरू कर दिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन IMF का मसला ये है कि क्या आप गारंटी करते हैं कि अगर रेट्स कम हो तो FBR के रेवेन्यू में इजाफा हो जाएगा? पहले तो मैं मेहताब साहब आपसे गुस्ताखी करूंगा थोड़ी सी। नहीं, आप आधी बात ना किया करें ना। आपने ये मेंशन कर दिया कि ट्रांजैक्शन कम हुई है, साथ ये भी मेंशन करें ना कि रेवेन्यू भी नीचे गिरा है। पिछले तो साल देखिए- के मुकाबले में उतना ही है, जितना बढ़ना था वो नहीं बढ़ा। नहीं नहीं सर, नहीं, पिछले साल के मुकाबले में 25% नीचे है। अगर आपको चाहिए तो मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध का, पंजाब का, FBR का डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास अवेलेबल। 236C और K सर का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के बराबर है, मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। इशू पता है क्या है? एक तो ट्रांजैक्शन की कमी की एक बहुत बड़ी वजह ये गवर्नमेंट का हार्ड स्टांस, मेहताब भाई जैसे दोस्त और ब्यूरोक्रेसी जब कहती है कि नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर, यार मैं भी 30 जो कमाई करता हूं पहले 30% गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं, उसके बाद उस सेविंग से प्रॉपर्टी खरीदता हूं, फिर उसके ऊपर मैं भी टैक्स पे करता हूं। ये पता नहीं लोगों के ज़हन में क्या, दिमाग में ये चीज़ है कि पता नहीं शायद आसमान से पैसे गिरते हैं और उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। वो भाई कोई कारोबार करता है, सैलरीड क्लास प्रॉपर्टी खरीदता है या बिजनेसमैन खरीदता है, वो भी वही टैक्सेस पे करता है जो दूसरे लोग पे करते अच्छा, हैं। एक बात मुझे और बताएं, मुझे ये लगता है कि हुकूमत ये जो फाइल का है इसको डिस्करेज करना चाहती है और कंस्ट्रक्शन को इनकरेज करना चाहती है, मेरा ये ख्याल है। क्या मेरा ये ख्याल ठीक है? और ये जो पैकेज है इसमें कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज़्यादा रिलीफ होगा? आपकी बात, आधी बात ठीक है, आधी बात गलत है। बताएं। फाइल को डिस्करेज करने के लिए आज तक इन्होंने किया क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे डिस्करेज कर रहे हैं? मतलब आपके साथ मेरी कितनी डिस्कशंस हुई, आपकी पिंडी इस्लामाबाद में कितनी सोसाइटीज हैं जिनकी FBR वैल्यूएशन नहीं है, वो किसने करनी है? मैंने। क्यों नहीं होती? कितनी सोसाइटीज हैं जिनका NOC नहीं है, वो बिकती हैं, किसकी मर्जी से बिकती हैं? किसने करना है, मैंने या अवाम ने? इसीलिए ये भी टास्क फोर्स में कहा गया है कि ऐसा मैकेनिज्म भी बिल्कुल आना चाहिए कि कोई ओवर सेलिंग ना हो। अगर वकार साहब के पास 100 कनाल जमीन है तो 100 प्लॉट बेचें। दूसरी बात, अगर इन्होंने 100 प्लॉट डेवलप करके देना है और उसका प्रॉमिस मेहताब साहब से 4 साल का किया है, तो ये बाउंड है कि वो 4 साल में मेहताब साहब को दें। ये नहीं कि चौथे साल में जाके ये खड्डा मारना शुरू करें। दूसरा एक ड्रामा जो है यहाँ पे, एक वकार साहब ने आपको प्लॉट दिया, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद का सॉरी आपकी लोकेशन चेंज कर दी। यस, ठीक है, बहुत सारे मैंने लोगों के साथ मेहताब साहब ने उस प्लॉट के ऊपर एक ओन मनी पे की कि फेसिंग पार्क है या कॉर्नर है। मतलब आम आदमी का राइट ही कोई नहीं है, एक तो अदारा कोई नहीं इसका, और उसके बाद अगर आप मुझे कहेंगे अदालत में चले जाएं तो फिर उसका फैसला कौन सुनेगा? अच्छा, एक आखिरी बात मुझे, ये जो फाइल बिकती हैं
इनको कैसे टैक्स नेट में लाया जाए? बहुत दफा एफबीआर को सजेशंस दिए हैं, बहुत दफा, पर ये काम नहीं करना चाहते। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। एफबीआर, आप लिखते हैं इसके ऊपर, पहली टास्क फोर्स की मीटिंग हुई है, चेयरमैन साहब चेयर कर रहे थे टैक्सेशन के ऊपर। मैंने कहा सर, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, आप लोगों ने जो मैकेनिज्म डाल दिया है कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी अपना नाइकॉब वेबसाइट पे अपलोड करे और उसके बाद आपका कमिश्नर उसकी अप्रूवल देगा। मतलब वो नॉन फाइलर के तौर पे ट्रीट हो रहा था, नॉन फाइलर के तौर पे। उन्होंने मेंबर पॉलिसी की तरफ देखा, उन्होंने कहा यार इसको ड्रेस करो। सर वो आज तक 2 महीने गुजर गए हैं, मैंने मेंबर साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैसेज भी सेव हैं, आज उसका पैकेज से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब हम लेकिन उसमें तो उन्होंने एक सर्कुलर तो किया था सर, वो भी 29 नवंबर को किया था हामिद अतीक सरवर साहब ने, और उसमें ये नई पाक डाल दी थी। मुझे ये समझ नहीं आती, जो पुराना मैकेनिज्म था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये आइडिया निकालते हैं इजी मनी का। इन्होंने पुराना सिस्टम बंद किया, कंप्यूटर पे सिंपल एक सिस्टम अवेलेबल था कि नॉन रेजिडेंट को आप टिक करेंगे, आपका चालान बन जाएगा, और जिस भी आप सीडीए में जाएंगे अपने पासपोर्ट की कॉपी दें, आपने सिर्फ उन्होंने कैलकुलेट करना है कि आपके 183 डेज यहां पे नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी मैं आपको प्रोग्राम के बाद आपको एविडेंस दे दूंगा कि लोग रिश्वत दे दे के अपने आप को लेट फाइलर, नॉन फाइलर की कैटेगरी से नॉन रेजिडेंट पैसे दे के मजबूरियों में अपने आप को फाइलर करवा रहे। और मैंने मेंबर साहब को एक दोस्त की रिक्वेस्ट पे एक के डॉक्यूमेंट भी भेजे कि सर इसको लेट फाइलर के चार्जेस लग रहे हैं, जेन्युइन नॉन रेजिडेंट है। आज तक रिप्लाई नहीं आया।